Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read Looking Around volume 2nd, class 4th. And students, chapter number 22, okay, and the chapter number 22 is the world in my home, okay, मेरे घर में दुनिया, okay, या दुनिया मेरे घर में. And students, today we have to start from page number 182, okay, and this is video second of chapter the world in my home, okay. So let's start students. Uh, we have to read first some question answer. Look here, okay. So first we read questions, okay, and you try to give answers. So let's start. Is there anyone in your family who is like पिल्लो आंटी, ओके, एंड हु, आपके परिवार में भी कोई पिल्लू मामी की तरह है. मीन्स पिल्लू मामी कितनी ऑनेस्ट थी, बहुत ईमानदार थी, ओके. तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई पीलू मामी की तरह है, तो कौन है. तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है अगर आपकी फैमिली में आपके पापा पिल्लू मामी की तरह हैं, पिल्लू आंटी की तरह हैं, या फिर आपकी मदर या आपकी ग्रैंड माँ या आपकी नानी माँ या आपकी बुआ कोई भी हैं, तो आप उनको बताएंगे, आप बताएंगे कि हाँ मेरी फैमिली में मेरी मॉम या मेरे फादर या मेरी बुआ ताई पिल्लू आंटी की जैसी हैं. मीन्स कि बहुत ऑनेस्ट हैं एंड नेवर चैट एनी वन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट yes my father and mom, ठीक है, yes my father and mother are like pillu auntie, okay. Yes my father and mother like pillu auntie. They too are very honest, okay. They too are very honest and never cheat anyone. All right students, so you can say my, yes my bua या my grandmother are like pillu auntie. They too are very honest. My grandma and या जो भी आप ग्रैंड पापा को बोल सकते हैं, ग्रैंड फादर, ओके, वे बहुत ऑनेस्ट हैं, कभी किसी को चीट नहीं करते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, what would the children have thought if Pillu auntie had paid less money to the kulfi seller? What do you think about this? Okay, students. So now you have to tell what would the children thought if पिल्लू आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फ़ी सेलर, ओके. तो अगर पिल्लू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती, ओके, तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते, ओके. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ओके. तो इस बारे में बच्चे क्या सोचते, व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ पिल्लू आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फ़ी सेलर. ठीक है, तो अगर पिल्लू मामी कम पैसे देकर, ठीक है, कुल्फ़ी वाले को कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती, तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते. तो आप इस बारे में क्या सोचते हो. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली अगर पिल्लू आंटी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती, तो बच्चे सोचते कि पिल्लू आंटी ने बहुत फ़ायदा उठाया, ओके, और वे बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश करती. ऑल राइट, और बच्चे उनको सोचते कि वे ऑनेस्ट नहीं हैं, वे क्या कर रही हैं, चीट कर रही हैं कुल्फ़ी सेलर को. और हो सकता था बच्चे भी इन फ्यूचर ऐसा ही सोचते, वे भी ऑनेस्टी का क्वालिटी अपने में नहीं ला पाते. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट if Pillu auntie had paid less money to the kulfi seller, the children would have got a wrong message, okay, that it is okay to take advantage of someone and being honest, okay. Students, we should always set good examples in front of children as their thoughts and habits depend on the elders around them, okay students. तो अगर पिल्लू आंटी वहाँ से कुल्फ़ी बेचने वाले अंकल को कम पैसे देकर चली जाती, तो बच्चों के सामने गलत उदाहरण पेश होता और बच्चे सोचते कि पिल्लू आंटी ऑनेस्ट नहीं है, तो उन पर भी ऐसी ही क्वालिटीज़ आ सकती थी. ओके स्टूडेंट्स, so again I am repeating my answer. If Pillu auntie, okay, if Pillu auntie had
paid less money to the kulfi seller, the children would have got a wrong message that it is okay to take advantage of someone. Okay, advantage of someone and being honest. All right, and students, we should always set good example in front of children, as their thought and habits depend on the elder around them. All right, students. Now next topic, what should I do? Okay student, now next topic is what should I do, means कि हमें ये मुझे क्या करना चाहिए. Okay, what should I do? So let's read, students. Akshay loves his grandmother very much. She loves him dearly too. She talks to him about many interesting things. Anil is Akshay's friend. His grandmother likes Anil too. But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house. Not even a glass of water. They are very different from our family, she says. Okay. अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच. अक्षय अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करता है. सी लव्स हिम डियरली टू. ओके, और वे भी उससे बहुत प्यार करती हैं. सी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स. ओके, वह उसको बहुत रोचक बातें, बहुत ही मज़ेदार बातें बताती हैं. ठीक है, अक्षय की दादी माँ अक्षय को बहुत ही रोचक और दिलचस्प बातें बताती हैं. अनिल इज अक्षय's फ्रेंड. अनिल अक्षय का दोस्त है. हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू. ओके, और उसकी जो दादी है, ठीक है, हिज ग्रैंड मदर, अनिल की जो दादी है, अक्षय की जो दादी है, लाइक्स अनिल टू, अनिल को भी बहुत पसंद करती है. ठीक है, वे अक्षय के दोस्त अनिल को भी पसंद करती हैं. बट वन थिंग दैट सी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट he should never eat or drink anything at Anil's house. Okay, not even a glass of water. They are very different from our family, she says. All right. तो अक्षय कौन है स्टूडेंट्स? अनिल का मित्र है, अनिल का दोस्त है, और उसकी दादी माँ अनिल को बहुत पसंद करती हैं. लेकिन एक बात, वन थिंग, एक बात, दैट सी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन, वह अक्षय को बार बार कहती हैं कि दैट ही शुड नेवर ईट ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस, कि उसे कभी भी अनिल के घर का खाना नहीं खाना है, और तो और पानी भी नहीं पीना है. ओके, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, सी से. और वह कहती हैं कि वे अनिल का परिवार उनके परिवार से, मीन्स उसका परिवार उसके परिवार से, अनिल का परिवार अक्षय के परिवार से बहुत अलग है, इसलिए उसको उसके घर में खाना और पानी भी नहीं पीना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, कौन कहती है ये? अक्षय की दादी माँ कहती है कि अनिल का परिवार उनके परिवार से बहुत अलग है, इसलिए आप उसके घर पे पानी या खाना कुछ भी नहीं खाना. जबकि अक्षय की दादी माँ अनिल को वाकई में बहुत पसंद करती है. तो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट इट कि वो क्यों ऐसा कहती हैं अनिल के बारे में. चलिए पढ़ते हैं. One day there was a volleyball. Okay, there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match. Anil invited everybody home. Anil's mother gave water to all of them and they drank it. When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. Akshay started at Anil, not knowing what to do. Okay, one day, एक दिन, there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. Okay, एक दिन अनिल के घर के पास एक बड़े से मैदान में वॉलीबॉल का मैच हो रहा था. ठीक है. इट वॉज अ हॉट डे. उस दिन बहुत गर्मी थी. एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच. और हर कोई थक गया था. टायर्ड मीन्स स्टूडेंट्स थक जाना, थर्स्टी मीन्स प्यासा. ठीक है. आफ्टर द मैच, मैच के बाद. उस दिन बहुत गर्मी थी और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बच्चा मैच के बाद
थक गया था और प्यासा था। ठीक है, सबको क्या लगा, सबको प्यास लगी और सब थके हुए थे। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी होम, अनिल ने सबको सबको अपने घर में इनवाइट किया, बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की मम्मी ने सबके लिए पानी दिया। ठीक है, ऑल ऑफ देम, अनिल की मम्मी ने सबको क्या दिया, पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और सब ने पिया। ठीक है, और सब उसको पीने लगे। और व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन जब अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास हाथ में दिया, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग, ही सडनली, सडनली मीन्स अचानक से, रिमेंबर्ड मीन्स याद आया, हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। ठीक है, उसको अचानक से दादी माँ की चेतावनी याद आई। ऑलराइट, अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोविंग व्हाट टू डू, अक्षय को याद आ गया, अक्षय को या समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसको अपनी दादी माँ की चेतावनी याद आ गई थी कि तुम अनिल के घर पर कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टॉक अबाउट इट। स्टूडेंट्स, अब आपको इसके बारे में बताना है। ओके, आपने अनिल, अक्षय की और उसकी दादी माँ की स्टोरी सुनी है, तो अब आपको कुछ बातें उससे रिलेटेड बतानी हैं। जस्ट लाइक, व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू। ऑलराइट, तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा। ओके, वो अपनी दादी माँ की चेतावनी को याद रखेगा या फिर प्यासा होने के कारण पानी पी लेगा। आपको क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, अक्षय विल ड्रिंक द वाटर बिकॉज ही मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड। ठीक है, आई थिंक अक्षय क्या कर लेगा, पानी पी लेगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और बहुत अधिक गर्मी है। ठीक है, तो आई थिंक वो उसे पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी वेरी एग्जॉस्टेड। ऑलराइट, वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज्ड, अक्षय कन्फ्यूज या उलझन में क्यों पड़ गया। ओके, क्यों पड़ गया था स्टूडेंट्स, वो उलझन में, वो कंफ्यूज क्यों हो गया था, क्योंकि उसको अपनी दादी माँ की चेतावनी याद आ गई थी। ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। ओके, दैट उसकी दादी माँ ने क्या कहा था कि तुम नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। ओके, तो उसकी दादी ने उसको बोला था कि कभी भी अक्षय के घर, अनिल के घर पे कुछ भी खाना पीना नहीं है। सो दैट्स वाई अक्षय वॉज कन्फ्यूज्ड। ओके, so students, you can say that Akshay was confused because his grandmother had told him not to drink or eat anything from Anil's house. Alright, not to drink or eat anything in Anil's house. Alright students, now next question, why do you think Akshay grandmothers warned him not to drink even after in Anil's house. Alright, so students, you have to tell about why do you think Akshay grandmothers warned him not to drink even water in Anil's house। अब आप बताइए कि अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी तक पीने के लिए मना क्यों किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आई थिंक अक्षय ग्रैंड मदर वॉन्ट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर इन अनिल्स हाउस बिकॉज बोथ द फैमिलीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑलराइट, दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने बताया, उसकी दादी माँ ने उसको कहा था कि हमारा परिवार उनके परिवार से बहुत अलग है। ओके, सो डोंट ड्रिंक और डोंट ईट इन अनिल्स एट अनिल्स हाउस। ओके, तो इस वजह से अक्षय की दादी माँ ने वॉर्न किया था। ओके, सो यू कैन से दैट I think Akshay grandmothers warned him not to drink even water, okay, in Anil's house because both families were very different from each other, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत अलग हैं। Okay students, now next question, do you know of anybody who thinks like Akshay's grandmother? ओके, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की बातों को मानते हैं। ओके,
तो हम आप कह सकते हैं कि यस, अगर आपके आसपास किसी फ्रेंड के कोई ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं या आपके नेबर्स में कोई एल्डर पर्सन ऐसे हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जस्ट एग्जांपल, यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। ओके, तो आप क्या बोलेंगे, यस वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं यस वन ऑफ माई नेबर्स इज ऑल्सो लाइक अक्षय's ग्रैंड मदर। ऑल राइट, मेरे एक पड़ोसी भी अक्षय के ग्रैंड मदर की तरह हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या आप अक्षय की दादी माँ से सहमत हैं। ओके, so I don't agree students. Okay, I according to my opinion I don't agree with Akshay's grandmother। ठीक है, हम इस बात से सहमत नहीं है, बिकॉज ऑल पीपल आर इक्वल। ठीक है, सभी लोग क्या हैं, समान हैं, तो हमें ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। ओके, सो यू कैन से दैट नो आई डोंट एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू। ओके, आपको क्या लगता है कि अक्षय को क्या करना चाहिए, उसको पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, आई थिंक अक्षय शुड नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अनिल एंड हिमसेल्फ, ही शुड ड्रिंक द वाटर ऑफर्ड बाय अनिल। ओके, तो आई थिंक अनिल ने जो पानी अक्षय को दिया तो अक्षय को पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिएगा तो इसकी वजह से दोनों में अंतर हो जाएगा। ओके, एक भेदभाव क्रिएट करेगा अक्षय अनिल और अपने बीच में। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट आई थिंक अक्षय शुड नॉट क्रिएट any sort of discrimination, okay, any sort of discrimination between Anil and himself। Okay, he should drink the water offered by Anil। All right students, now next topic, who will decide। Okay, who will decide, कौन फैसला करेगा। okay, who will decide, so let's read। Dhondu, okay, Dhondu comes from a very large family। His elder uncle looks after the family, their fields, money, matters, etc. He decides about all the small and big things, okay, all the small and big things for the family। धोडू कम्स फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली, तो स्टूडेंट्स धोडू का परिवार बहुत बड़ा है। ठीक है, धोडू का परिवार बहुत बड़ा है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, उनके जो बड़े अंकल हैं, उनके बड़े जो काका हैं, वो ही परिवार को की देखभाल करते हैं। जैसे परिवार की देखभाल, जैसे देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, मनी मैटर, ओके, रुपए पैसों का हिसाब आदि उनके बड़े काका या बड़े अंकल, बड़े चाचा ही करते हैं। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। ओके, और परिवार के सभी छोटी और बड़ी चीज़ों का फैसला भी वे ही लेते हैं, धोंडू के बड़े चाचा। ओके, एल्डर अंकल ही घर की सभी चीज़ों को देखते हैं, जैसे घर में रुपए पैसे का हिसाब करना, खेती बाड़ी का हिसाब करना, और छोटे बड़े सभी निर्णय वो ही लेते हैं। ओके, now next para, Dhondu has always worked in the field, but now he wants to do something different। He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki machine to grind grain। Okay, there is such machines in their village। Dhondu is confident that this new work will help him earn more money for his family। Father has agreed to let him try the new work, but his elder uncle is not agreeing to this। Okay students, so Dhondu has always worked in the fields। Okay, तो students ढोंडू अभी तक हमेशा खेतों में काम करता है। ठीक है, ढेडू हमेशा खेतों में काम करता था, बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन अब वह कुछ नया करना चाहता है। ओके, लेकिन अब वह कुछ नया करना चाहता है।
He would like to borrow some money from a bank and buy a chakki machine to grind grain. He would like to borrow some money. Okay, तो अब उसको बैंक से कुछ पैसे उधार लेने हैं एंड बाई अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन. ओके, और उसको एक चक्की की मशीन खरीदनी है. ठीक है, वहाँ पर कोई चक्की की मशीन नहीं होगी तो वह बैंक से कुछ उधार लेकर आटे की चक्की या चक्की मशीन, ठीक है, ग्रेन मीन्स अनाज के दानों को पीसने वाली चक्की की मशीन खरीदना चाहता है. देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज. उसके गांव में ऐसी कोई मशीन नहीं है. ओके, देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज. उसके गांव में ऐसी कोई मशीन नहीं है. ढोंडू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली. ओके, धोनू इज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस मीन्स यकीन, विश्वास. धोनू को पूरा विश्वास है दैट दिस न्यू वर्क, कि उसका यह नया काम विल हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा, अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली, परिवार में और अधिक पैसा कमाने के लिए. ओके, तो स्टूडेंट धोडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फ़ायदा होगा, परिवार में और अधिक पैसा कमाया जाएगा. फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क. ओके, और फादर उसके ढोडू के पापा को भी उसने एग्रीड कर लिया, मना लिया. ठीक है, ट्राई टू दिस न्यू वर्क, इस नए काम को करने के लिए उसके पापा को भी उसने मना लिया. बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस, लेकिन उसके जो बड़े अंकल हैं, बड़े काका हैं, वे इस बात से सहमत नहीं हुए. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे धोंडू उसकी फैमिली के बारे में बात हो रही है. धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है, उसकी एक जॉइंट फैमिली है और परिवार के सभी रुपये पैसे और खेती बाड़ी का सारा हिसाब उसके बड़े काका, उसके एल्डर अंकल ही संभालते हैं. ओके, और परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वो ही लेते हैं, ढोंडू के बड़े काका. ओके, लेकिन ढोंडू क्या है, खेत में काम करता था, लेकिन अब वह कुछ नया काम करना चाहता है. ठीक है, लेकिन ढोंडू अब कुछ नया काम करना चाहता है. वह बैंक से कुछ उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है. मीन्स कि बाई अ चक्की मशीन टू ग्रेंट ग्रेन, मतलब अनाज पीसने वाली चक्की लगाना चाहता है, क्योंकि गांव में एक भी चक्की नहीं है. और ढोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से उसके परिवार को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो और अधिक पैसा कमाएगा. ठीक है, तो द न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी इन हिज फॉर हिज फैमिली एंड फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई दिस न्यू वर्क. अब उसने अपने पापा को तो मना लिया, उसके पापा तो मान गए चक्की खोलने के लिए. ओके, बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस. लेकिन जो उसके बड़े काका हैं, जिनकी परिवार में सबसे ज़्यादा निर्णय जिनके परिवार में उनके द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन वे एक भी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, वे इस बात से सहमत नहीं हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके आगे को हम कल को पढ़ेंगे. ऑल राइट, बिकॉज टुडे क्लास इज ओवर. All right, tomorrow I will be back with other topics, okay, for this chapter. All right, about Dhondu and his family. So till then students, be safe, revise your work, take care.